is equal to a plus b into a square minus ab plus b square, right? Yes, sir. Let's suppose in place of a we are putting a to the power 1 by 3. In place of b we are putting b to the power 1 by 3. Is it okay? Yes, sir. Now tell me the first write down, then tell me the formula. First write down, replace a with a to the power 1 by 3, b as b to the power 1 by 3, then tell me the formula, right? Take your time. Yes. A to the power 1 by 3. A to the power 1 by 3, 3 to the power 3. So that will be a plus b is equal to a to the power 1 by 3 plus b to the power 1 by 3 into a to the power 2 by 3 minus a to the power 1 by 3, b to the power 1 by 3, b to the power 2 by 3. Is it okay? Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. Let's suppose I'm saying कि now do one thing for me, put b is equal to 1. So what you are getting? A plus 1 is equal to a to the power 1 by 3 plus 1 into a to the power 2 by 3 minus a to the power 1 by 3 plus 1. Is it okay? Yes, sir. Everything is okay till there, till now? Yeah. Up to this step? Yes. Right? Now, see this result and your question. See this result and your question. Could you relate both the question and this formula? Are you able to relate both the things? If I'll put in place of A, if I'm putting 2, this will be 2 plus 1 is equal to 2 to the power 1 by 3 plus 1, 2 to the power 2 by 3, 2 to the power 1 by 3 plus 1. Is it okay? Yes, sir. So what is this value? What this is 2 to the power 1 by 3 plus 1. What number you are multiplying with this, so you are getting a rational number. That number is called rationalizing factor. Yes, sir. Right? So what is the rationalizing factor of this? 2 power 2 by 3 minus q power 1 by 3 plus 1. Is it okay? Yes, sir. Could you relate the formula now? Yes. For Yes, sir. any cubic power, you are able to relate that? Yes, sir. Very good, beta. I'm coming to the second one. First, note down this. Tanis, send me again. I've not received yet. Send me again, please. Sir, 5 minutes, sir. Yes, sir. Done. See the second one, right? X is equals to under root of a plus 2b plus under root of a minus 2b upon under root of
a plus 2b minus under root of a minus 2b. Prove that bx square minus ax plus b is equal to 0. Anybody can help me with this? Anyone? So we can take x by 1 and then Very good. componendo dividendo करना है. Very good, beta. Very good. Very good. Very उसके बाद whole square करके we can take out the roots and then we'll get the equation as a term. Very good. अपने आप फिर एक बार componendo dividendo करने. It's a question of componendo dividendo. Do you know what is the meaning of this componendo dividendo? No, sir. Ikhar, Yes, sir. do you know what is the meaning of componendo dividendo? No, sir. How many of you know about componendo dividendo? Please write down yes. Write down yes in chat. And if you don't know, write down no in chat. Yes. चलो कोई नहीं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ना, क्या होता है मीनिंग. If any equation is given in the form of a by b is equal to c by d, right? तो ये बहुत बड़ा रूल होता है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये जो हम लोग देखते हैं उसके मतलब दिस इज ओनली द रेशियो प्रोपोर्शन. बट इफ यू आर एबल टू यूज दिस ना, यू कैन यूज दिस इन वेरियस वे. लाइक a by b is equal to c by d, then you can write this as a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d. Right? Maybe you can also write this as a square plus b square upon a square minus b square is in the under root is equal to c square plus d square upon c square plus d square is in the under root is equal to a by b is equal to c by d. Yeah, this you can do. Maybe you can give power of 3 and then you have to take the cube root. Then you have to take the cube root of that, right? वहां से भी ये वर्क कर जाता है. तो बहुत सारे इसके फॉर्मूलाज होते हैं. सबसे अधिक जो यूज करने में आता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो ये वाला रहता है. शिखर, is it okay? Right? अब इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में कैसे यूज करूं? तो यहाँ x है, x अपॉन तो कुछ है नहीं, तो हमने अपने तरफ से ले लिया x अपॉन 1, राइट? तो ये x a है, दिस इज b, ये पूरा c है, ये पूरा d है. ऐसे ही मैं अज्यूम करूंगा, देन ओनली आई कैन प्रोसीड इन दैट, राइट? तो x and this, right? So we can write down the formula as x plus 1 upon x minus 1 is equals to this c plus d करूंगा तो simply twice of under root of a plus d and c minus d करूंगा तो twice of under root of a minus 2 cancel, squaring both side. x plus 1 का whole square, x minus 1 का whole square. डिविडेंड तो लगाया ना? हाँ बेटा, फिर से एक बार लगाना होगा. इस बार आप लोग खुद से लगा के देखो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये वाले में क्या आता है देखना. अब इसे ओपन कर देंगे. नहीं, पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें लगाओ. a upon 2b. हाँ, a upon 2b और लेफ्ट साइड में देखो क्या आएगा. x square plus 1 upon 2x. So यहाँ भी फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो आई एम यूजिंग, सो आई कैन रीराइट दिस एज x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस x minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस x minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a plus 2b by a minus 2b.
a plus 2b plus a minus 2b upon a plus 2b minus a plus 2b, right? Open करूंगा, twice of x square plus 1 upon 4x. Solve करूंगा, 2a upon 4b. 2, 2, 4, 4 cancel. Right? We're getting bx square plus b is equal to ax. bx square minus ax plus b is equal to 0. No problem, Hitansu. Just started discussing the previous questions only. Na? Just note down, please. Last page में दिखा दूं. Just. सर 12th क्वेश्चन का फाइनल आंसर √3 है क्या? नहीं बेटा सॉल्व करना पड़ेगा. Done. Next page पे आ जाऊं. Done. यस सर. कौन सा क्वेश्चन था बेटा? किसी ने भेजा है मेरे को. Which one? क्वेश्चन का फाइनल आंसर. नहीं बेटा, दूसरा कोई भेजा है किसी ने.
second and eighth. See, ये काफी, it's a beautiful question. It, if three numbers A, B, C, none of which is zero related by A square is equals to B square plus C square minus 2BC under root of 1 minus A square. B square is equal to C square plus A square minus 2CA under root of 1 minus B square. C square is equals to A square plus B square minus 2AB under root of 1 minus C square. Then prove that A is equal to C under root of 1 minus B square plus B under root of 1 minus C square. Right? This you have to prove. ये तीन इक्वेशन की बने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, कुछ हुआ है क्या अभी? ना ना, अभी तो जस्ट हम लोग अभी पहुंचे, ये क्वेश्चन लिखा है बस. ठीक है. ठीक है ना? तो नाउ यू हैव टू प्रूव दिस ना, A is equal to this. तो अब तीनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखूं, राइट, and we have to get A is equal to something, this formation, right? And you have to use to be given equations हैं first and second. So like we have added first and second, क्या आ जाएगा? A square plus B square plus 2C square plus A square minus 2BC 1 minus A square minus 2CA under root 1 minus B square. A square B square, right? A square B square cancel out. तो C is equal to मेरे पास कुछ क्वांटिटी आ गई, बट मुझे निकालना A के इक्वल है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात, मैं क्या करूंगा, 2 + 3 करके देखता हूँ, राइट? आपको जो चाहिए वो आंसर आ जाएगा. कैसे? ये दोनों जब ऐड होगा तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ये पूरे इधर ऐड हो रहे हैं, तो C स्क्वायर B स्क्वायर कैंसल आउट, तो यू आर गेटिंग 0 इज इक्वल टू 2A स्क्वायर माइनस 2CA अंडर रूट ऑफ 1 माइनस B स्क्वायर माइनस 2AB अंडर रूट ऑफ 1 माइनस C स्क्वायर. 2 एंड A दोनों कैंसिल हो रहे हैं, दोनों को कैंसिल कर दिया. ध्यान देके देखो, आपके पास जो रिजल्ट आया, A is equals to C under root 1 minus B square plus B under root 1 minus C square. Done. Note down, please. सर ये क्वेश्चन है कि फॉर्मूला है किसी का? ये पहले किया हुआ क्वेश्चन सब है, मैंने जो शीट दिया था ना उसमें कुछ डाउट थे, वो डाउट में ये एक है. सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया? नेक्स्ट पेज पे गया, हाँ, 2A को पूरे से कैंसिल कर दिया. किससे? 2A. ओके, ऐसा आया था ना, 2A स्क्वायर इज इक्वल टू AC अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2AC अंडर रूट ऑफ 2AB अंडर रूट ऑफ 1 माइनस C स्क्वायर. 2A कैंसिल कर दिया. अच्छा, हाँ, पेज पे जा सकते हो. थैंक यू.
डन। सर फिर इक्वेशन 1 और 2 ऐड करने का क्या फायदा हुआ? 1 2 ऐड करके देख रहा था कि पैटर्न क्या मिल रहा है, तो उस पैटर्न से ही देखने पे पता चला ना कि ऐसा हाँ करने सर, से गेट दैट ना। हाँ सर हो गया। हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। See, कहाँ गया, कहाँ भेजा तुमने? हाँ, सेकंड था ना। a plus root b is equal to c plus root d, right? a b c d जो भी है, b and d greater than 0 है, and a b c are rational and root b and root d are surds, राइट। पहले इतने क्वेश्चन को समझते हैं ना। कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा आपने इसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? एनीवन? टेक योर टाइम, 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद एक्सप्लेन दिस। इन्फेक्शन झालं तर सर हमें सर्ट्स को रिलेट करना है एक दूसरे से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और इफ द सर्ट्स के जो वैल्यूज अंडर रूट है अगर वो सेम नहीं है तो वो रिलेट एक दूसरे से हो ही नहीं सकते। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एवरीवन टेक योर टाइम, वेरी गुड। और फिर इवेंचुअली फिर ए और सी भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि अगर रूट बी और रूट डी इक्वल है तो। या वेरी गुड, गुड थॉट। देखो मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। ये सर्ड से मतलब उसका अंडर रूट नहीं निकलेगा, मतलब अंडर रूट 9, अंडर रूट 16 ऐसी वैल्यू नहीं है। अंडर रूट 7 है, 11 है, जिसके अंडर रूट नहीं निकल सकते। मान लो 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 11 मैंने लिखा, ये लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कैसे कंपेयर होगा नंबर? मैं जानता हूं कि रैशनल वाला है जिसपे अंडर रूट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए, एंड ये दोनों एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। We know that 2 is not equal to 7 and root 5 is not equal to root 11, right? ये दोनों इक्वल नहीं है तो मेरा ये लिखा हुआ भी सेम नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर रैशनल से और सर्ट्स वाले को ही एक दूसरे को इक्वेट कर सकता है या मैनेज कर सकता है, राइट? मतलब साफ है कि यहाँ पर ए और सी अगर दोनों हमारे पास रैशनल नंबर है तो ए और सी को इक्वल होना चाहिए और बी और डी को इक्वल होना चाहिए। तो a is equal to c and b is equal to d. Is it okay? सर इसमें करना क्या था फिर? बस यही बताना था बेटा। तो
उसी में 4 ऑप्शन थे या कुछ क्वेश्चन था, यही चीज बताना था कि एग्जैक्टली कब होगा, तो यही प्रूव करना था A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। हो गया? इज इट ओके? यस सर। ठीक है। सर अब हाँ, आप फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे बोल दीजिए, मैं कीजिए मत, मेरे को ट्राई करना है। फोर्थ क्वेश्चन। क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू वो पूरा कैंसिल हो गया। फोर्थ कौन सा बेटा? किसमें का फोर्थ? ब्रेन वर्क्स। ब्रेन वर्क्स का फोर्थ। फोर्थ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 2xyz xyz गिवन है। ठीक है, आप लोग सब लोग ट्राई करो, मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अभी कर ही लेते हैं ना, क्यों बात किए सर रखेगा। सर हाँ, इसमें फॉर्मूला यूज करना था। वेरी गुड बेटा। √7 माइनस √5 एक्स है, y है √5 माइनस √3, z है √3 माइनस √7। बहुत प्यारा क्वेश्चन हो सकता है ये, राइट, जिसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 2xyz की वैल्यू निकालनी है, राइट। डू इट फास्ट, आपके पास 3 to 4 मिनट्स है ना।
Okay, done. Done everyone. ध्यान दो. Beautiful question. बहुत simple question में है. If you'll add x, y and z, then you are getting 0. And we know that if x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. So we can say x cube plus y cube plus z cube minus 2xyz is equal to only xyz. तो मेरा तो आंसर ही आ गया. मीन्स ये जो लिखा हुआ है इसका आंसर होगा xyz मतलब √7 minus √5 into √5 minus √3 into √3 minus √7. That's it. मेरा माइनस एक्स वाई जेड आ रहा था. ठीक है ना, सामने देख रहे हो तो. मेरा माइनस एक्स वाई जेड आ रहा था. देख क्यों आएगा, सामने फॉर्मूला देख रहे हो, बोल रहा हूँ तो. हाँ सर मेरा आया. 2xyz को इधर लाएगा तो एक xyz उधर बचेगा ना, माइनस लिखेगा हाँ. तब तो 4xyz हो गया. हाँ ठीक है सर. ना वो कैलकुलेशन मिस्टेक किया. ठीक है, हाँ. आगे बढ़े. यस सर. राइट नाउ सो दिस इज लाइक जो बेसिक्स वाले हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे एंड उस पर जो वर्किंग हमारी रही उस वर्किंग पर वी वर राइट. नाउ अब यहाँ पर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया था कि एक याद होगा पॉलिनोमियल्स वगैरह मैंने कुछ बताए होंगे, बेसिक्स ख्याल है. सर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, सर्ट्स सबके कंप्लीट हो गए हैं. कंफर्टेबल विथ ऑल द क्वेश्चंस एवरीवन कंफर्टेबल विथ द क्वेश्चंस. Yes, sir. मैं आगे बढ़ूं. पॉलिनोमियल्स की बेसिक यू नो, Yes. जो 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बोर्ड्स में, राइट. पॉलिनोमियल्स मैंने सर कुछ एक मिनट, मैंने Yes. याद है आपको 27th क्वेश्चन आधा करके भेजा था. नहीं याद बेटा. आपने बोला था सही है. आगे उसको बढ़ा लो. क्या? आगे उसको बढ़ा लो. हाँ नहीं हो रहा. Send me the question. क्या ट्विस्ट मारा तूने. मेरे को लगा बोलेगा एकदम हो गया सर, मजा आ गया. Send me the question please. 4 बाई एक मिनट लिखता हूँ. 4 बाई 2 प्लस √3 प्लस √7 2 plus √3 plus √7 इज इक्वल टू √a प्लस √b माइनस √c. बस. That's it. हाँ. Everyone take your time. कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ. सर इसमें देखिए जब डबल रेशनलाइजेशन है. एक मिनट बेटा, एक मिनट, सबको ट्राई कर लेने तो एक बार ना. एक ही रैशनलाइजेशन में हो जाएगा, डबल की जरूरत नहीं पड़ेगी. नंबर्स को ध्यान से देखोगे ना. ठीक है सर, ट्राई करता हूँ.
सर मेरे को आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। उसको अंदर ले जाके 9 कर दो बेटा। नहीं नहीं सर, नीचे फ्रैक्शन के नीचे 3 आ रहा है, रूट मेरा भी के हो- बाहर नहीं। हाँ उसी सर, को डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। उसी को मैंने बोला अंडर रूट के अंदर ले जाके उसको 9 लिख दें तो यू विल गेट द आंसर। ये लिखा, नीचे लिखा, यही किया होगा आप लोगों ने। हाँ हाँ सर। 4 times 2 plus root 3 minus root 7 upon 2 plus root 3, 4 plus 3, 7 plus 4 root 3 minus 7, 7 cancel out, 4 cancel out, root 3 से minus किया, 2 root 3 plus 3 minus root 21 upon 3, ये आ जाएगा। अलग अलग हाँ कर, सर, यही है, यही है। 2 by root 3 1 minus under root 21 by 3। इसे रीराइट करता हूँ, 2 by root 3 को लिख सकता हूँ 4 by 3 का अंडर रूट माइनस 1 का अंडर रूट को 1 माइनस मेरे पास है 21 by 3, तो उसे लिखता हूँ 21 by 9। 3 कैंसिल हुआ, 7 3 अंडर रूट 4 by 3 प्लस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 by 3। सर ऑप्शन में 4/3 नहीं है। हाँ, ऑप्शन में 4/3 नहीं है। ये बच्चे कर लेते हैं बेटा। ए बी सी कैलकुलेशन चेक कर लें। सर एक बार पीछे लगाइए। 1 मिनट बेटा। हो गया, सही है। सही था। हाँ, और ऑप्शन क्या क्या दिया है? ए ऑप्शन में b इज इक्वल टू 4/3 गिवन है। अच्छा ठीक है ना, जो भी है, मतलब ये आ गया तो ऑप्शन मैच करना है, कैसे कर लो आप ना। हाँ सर है, मैंने देखा। कोई बात नहीं बेटा। मैंने रूट 3 तक लाके छोड़ दिया, उसके बाद रूट 9 नहीं किया। सर आपने लास्ट में स्क्वायर करके अंडर रूट किया ना सबको? हाँ, सबकी जरूरत नहीं पड़े ना। जैसे 2 by root 3 है तो 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 by root 3, फिर लिख दिया अंडर रूट 4 by 3। हाँ सर समझ। नीचे वाला तो अंडर रूट ही था ना, ठीक है। सर 12th का फाइनल आंसर, क्वेश्चन बोल दो बेटा। एक सेकेंड। हाँ, गिवन दैट रूट 3 इज इक्वल टू 1.7321, find correct to 3 decimal places the value of root 192 minus half root 48 minus root 75। माइनस half root 48, ऊपर में है, हाँ, minus root 75। ठीक है। तो पहले 192 को सोचूं तो 3 into 64, 64 is 8, so this is 8 root 3 minus कितना आ गया? 16 4 जा 4 root 3 by 2 minus 5 root 3, right? 2 2 जा, right? 7 ये गया 7, ये गया root 3 का मतलब होता है 1.732, ये आ गया। सर आ गया था, यही मेरे को डाउट था कि फाइनल आंसर करेक्ट है कि नहीं। डन एवरीवन? हाँ हाँ सर। हाँ सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देख लो और जल्दी से देख लो, आप लोग डाउट्स पूछ रहे हो तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है। एवरीवन, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पूछ रहे हैं। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, मेरे को थोड़ा सा सभी से एक एक कर बात करने दो। तरुण, वानी, वरिन। तरुण, वानी, वरिन, कोई डाउट है? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं सर, मेरे डाउट्स लास्ट क्लास से क्लियर कर दिए थे मैंने। वेरी गुड। दुर्गेश, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आप लोग इनिशिएटिव लो बेटा। 1 मिनट दुर्गेश, आप 1 मिनट, आप लोग इनिशिएटिव लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसलिए हैं कि आप लोग को हेल्प करें, राइट?
कभी कभी होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सिली क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी दिमाग से नहीं आते हैं, कोई इसमें कोई वरी नहीं है। कभी ये मत सोचो कि कौन क्या जज करेगा आपको, यहाँ जज करने की बात ही नहीं होती है, यहाँ पर लर्निंग के लिए हम लोग हैं। हाँ, कोई जज करने की, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तो सर क्या सोचेंगे ना, ये क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। सबसे अधिक मेरे को तब खराब लगेगा जब हम लोग यहाँ से बढ़ जाएं और यहाँ के कई कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में ही नहीं बैठ पाए, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम लोग की पढ़ी हुई रहती है, लेकिन होता क्या है दिमाग से छूट जाता है, क्योंकि हम लोग को लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये एक नेचर है हमारा, ये जो हम लोग को गॉड ने दिया है ना, इसी तरह से नेचर दिया है। पहले हम लोग सोचो, पहले जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो हम लोग बहुत अच्छे से दौड़ सकते थे, कहीं भी पहाड़ चढ़ सकते थे, आराम से दौड़ते दौड़ते पहाड़ चढ़ जाते, पहाड़ से उतर जाते। क्या अभी हमारे लिए पॉसिबल है ना? 1-2 किलोमीटर दौड़ने में ही हमारी हालत खराब हो जाती है। वो इंस्टिंक्ट जो है, जो चीजों को हम यूज नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। लेकिन फिर भी मेरे को दौड़ना ही है और पहाड़ चढ़ना है। क्या करना पड़ेगा? 6 महीने तक मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 6 महीने तक पहाड़ के ऊपर दौड़ना पड़ेगा, थोड़ी उसके कोर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मैं कर पाऊंगा। सेम यहाँ पर है, कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को 9th-10th में होगी, मैंने नहीं किया क्योंकि उस समय जरूरत नहीं था। हमारी जरूरत थी उस समय मार्क्स लाना, उस समय जो भी स्कूल में हो रहा था उसको करना, और वहां पर से मार्क्स लाया, जो करना था। एज अ चैप्टर नहीं था ना? कौन सा बेटा? थर्ड एज अ चैप्टर कभी नहीं आया। 8th क्लास 9th में था सर। 9th में, हाँ 9th में होगा। नाम सर्ड्स नहीं था ना, कुछ और था होगा। सर्ट्स ही नाम होगा, सर्ट्स तो सर्ट्स ही होगा ना, सर्ट्स को तो दूसरा नाम क्यों बोलेगा? सीबीएसई में तो नहीं था पक्का। अरे कुछ ऐसा थोड़ी होता है यार, सर्ट्स तो सर्ट्स ही रहेगा ना, सर्ट्स का नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा। अंदर तो उसके सर्ट्स ही रहा होगा ना, कि सर्ट्स पढ़ रहा है, सर्ट्स का डेफिनेशन ये है, सर्ट्स को थोड़ी पर्ट्स बोलने लगा होगा। सर 9th में सर्ड्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स के चैप्टर सब रैशनल, हाँ सब टॉपिक आईसीएसई के लिए तो था। ऐसे दोनों सर आईसीएसई में स्किप करवाया था, बोला पोर्शन में नहीं है, तो हमें रैशनलाइजिंग एक्चुअली एज अ टॉपिक नहीं सिखाया। हाँ, और 10th में आके बहुत डिफिकल्टी हुई, तो वो लोग ने चैप्टर वाइज सिखाया, जैसे कि जब रूट्स आने लगे डिनोमिनेटर में, तब वो लोग ने सिखाया रैशनलाइजिंग क्या होता है। नहीं बेटा, सिखाया नहीं, सिखाने की कोशिश की। सिखाना होता तो 9th में ही सिखाता, क्योंकि बेसिक मालूम होता तो हम अपने आप लगाते, क्यों बताने की जरूरत पड़ती। बात समझ रहा है? अब बात समझना, मैं क्यों 11th का नहीं स्टार्ट करके 11th का पढ़ाते पढ़ाते ये सब बीच में आता, फिर बोलता देखो ये तो वो होगा, वो होगा, ये होगा, वो नहीं किया। मैं बोला कि चलो पहले पढ़ ही लो। उसका रीजन समझ रहा है ना? उससे फायदा हम सबको हो जाता है, और फायदा इतना अच्छा हो जाता है ना कि शुरू में दिक्कत जाएगी। मैंने बोला ना, कुछ जैसे अपने बॉडी में ही कई सारी चीजें हैं, कई सारे हमारे पोर्शन जिसको हम यूज ही नहीं कर पाते। जब यूज नहीं कर पाते हैं तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कुछ दिन में यूज करोगे, 6 महीना साल भर तक अपने आप को फिर से वर्क करने लग जाएगा। नॉट अ बिग डील, मतलब डोंट थिंक, बस वो ये प्लीज आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, डोंट थिंक कि लोग क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे। अरे जिसको जो सोचना है सोचने दो यार। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं इंडिविजुअल अपना यहाँ पर कैरी कर रहा हूँ कि मेरे को जो नहीं आएगा मेरे को पूछना है। हो सकता है मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ, मेरे को धीरे धीरे समझ में आएगी, और धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन मैं आगे जाके बहुत अच्छा करूंगा। लेकिन आज ही अगर मैं छोड़ना शुरू कर दूं कि मेरे को नहीं आना, हाँ, तो वो गड़बड़ होगा, राइट, वो गड़बड़ होगा। इसलिए आस्क एंड आस्क। दिक्कत होती है, मेरे को चैट कर दो, मेरे को मैसेज कर दो, बट आस्क, ठीक है? हाँ दुर्गेश, आप कुछ बोल रहे थे बेटा? हाँ सर, डाउट है, ये ब्रेन वर्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 है सर। हाउ टू प्रूव दैट एक नंबर इरेशनल या फिर रैशनल नंबर है? यहाँ पे लिखा शो दैट √2 इज ये एक सेकंड ना सर, आपका कौन सा बोर्ड था दुर्गेश? आईसीएसई। जैसे हाँ, सीबीएसई वालों कितने हैं यहाँ? सीबीएसई वाले? हाँ सर, सीबीएसई में किया है ये। हाँ देखो, ये झूठ बोल रहा है, नहीं किया है तेरे क्लास में, सब ने किया होगा सर। वैसे मैं बताऊंगा, मैं पहले किया है बहुत। हाँ सर, और हमारे सर ने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन पोर्शन में ही नहीं है। हाँ, मतलब 10th के लिए तो ठीक है बेटा, समझ गया ना? वो तो अब तो आप लोग बड़े हो गए, आप समझ गया ना।
कि हाँ क्यों ये सर। के हटा दिया जाता है। नॉलेज तो हर जगह पर यूज हो जाती है ना। शुरू करूं? हाँ सर। तो रूट 2 को ही दिखाऊं क्या? रूट 2 इररेशनल है या रैशनल है? हाँ √2 को। See, अनन्या अभी देखते हैं बेटा। मैथमेटिक्स में एक बहुत ही अच्छा पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा इतना अच्छा चीज होता है ना, जैसे एक छोटी सी बात मैं समझाता हूं आपको। आप लोग बताओ मेरे को, 0 जो है वो इवन है या ऑड है? कोई नहीं। सब लोग अरे चैट में लिखते जाओ ना, आप जो भी आपको लगता है चैट में लिखते जाओ। Rahil, could you explain why even? सर आई थिंक क्योंकि जब भी हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखते हैं तभी हम लोग 0 2 4 6 8 0 भी उसमें काउंट करते हैं। ओके, नहीं ये रीजन नहीं रहा, ये ऑब्जर्वेशन रहा, बट नॉट बैड, नॉट बैड। सर मैं बोलूं? अनन्या, एक एक करके आता हूँ बेटा, सबका नाम आया हुआ है, सबके पास आऊंगा। अनन्या। और सर क्योंकि जब भी हम लोग 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसीलिए बट नॉट बैड, नॉट बैड। शिखर। यस सर। हाँ एक्सप्लेन बेटा। सर ऑड या इवन कुछ बोल ही नहीं सकते, 0 तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं क्या? नहीं, कुछ बन ही नहीं सकता 0 से, ऑड या इवन कुछ है ही नहीं, तो फिर ग्रुप कैसे करेंगे ऑड इवन में? या तो आदमी मरा हुआ है या जिंदा है, ठीक है, इसके भाई बीच अगर क्या हो सकता इंसान है? सीधे से देखिए तो अगर 3 इंसान है तो वो ऑड हुए, एक अलग अलग जगह, अगर 2 2 के ग्रुप लगाएं तो। लेकिन 0 रहेगा तो कुछ कर ही नहीं सकता, ना वो अकेला है ना वो किसी के साथ है, वो है ही नहीं। नॉट बैड। अमरूप। नेक्स्ट। हाँ सर मैं भी वही बोलने वाला था, 2 से डिविजिबल होता है, 0 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। प्रज्ञेश। Sir, I think same. I think it's divisible by 2. Same. So this must be even, right? So divisible by 2 is an even number. Is okay. See ना, क्या मैं बताना चाह रहा था? Each and every integers are either even or odd, right? And the definition of even number is every number must be in the form of 2n, where n belongs to integer, and odd for this is 2n plus 1, n belongs to integers, right? Every numbers must be in the form of 2n plus 1, n belongs to integer, and 2n, n belongs to integers, right? Even and odd, right? So let's suppose 0 is an odd number. So this must be in the form of 2n plus 1 or 2n minus 1. So I'm getting n is equal to minus half. But by definition, n must be integer. And from this, it's not coming as integer. So 0 must not be odd. If 0 is not an odd number, so 100% this must be even. राइट, क्योंकि दो नंबर दो ही टर्म में डिवाइड हो सकते हैं, या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो हमने जब ये प्रूफ कर दिया कि 0 मेरा ऑड नहीं है तो 100% वो इवन होगा। इसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन, इसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन, राइट, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम लोग जब वर्क करते हैं, कि हमने कहा कि √2 जो हमारे पास है, अगर वो रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ p by q, राइट। ये कौन डिफाइन करेगा व्हाट इज दिस p by q? कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो p by q होता है, तो व्हाट इज दिस p by q? कौन डिफाइन करेगा? कोप्राइम। तो p and q must be कोप्राइम। Sir, and q is not equal to 0. वेरी गुड बेटा,
सही, चंदों का सही है, थोड़ा थोड़ा मिसिंग है ना, भरने के बाद ना वो बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को देखना। Q must HCF not is equal to 1. Q must not be equal to 0. क्या बोला? Co-primes means that HCF is equal to 1. हाँ, वेरी गुड, राइट। तो P Q को प्राइम है, मतलब दोनों के एक दूसरे में फैक्टर नहीं है ना। P और Q को प्राइम है, मतलब HCF 1 है, मतलब दोनों में कोई फैक्टर HCF 1, राइट, कोई फैक्टर नहीं है मेरे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। फिर ये मेरे पास हमने कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करने के लिए पहले ले लिया कि ये रैशनल है। अगर अब मैं एबल हूँ ये प्रूव करने को कि ये मैंने गलत एज्यूम किया, ये रैशनल नहीं है, तो 100% नंबर दो ही तरीके के होते हैं, या तो रैशनल या इरैशनल। और अगर ये रैशनल नहीं है तो ये इरैशनल है। ठीक है ना। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 is equal to p square by q square और 2 q square is equal to p square। so यहां से मेरे को मिला कि p belongs to even number। क्यों even number होगा? क्योंकि यहाँ पर p square की वैल्यू आ रही है 2 into कोई इंटीजर। 2 into इंटीजर आने का मतलब है कि p मेरा इंटीजर होगा तभी ये बात आ रहा होगा। p इंटीजर है, साथ ही साथ 2 का फैक्टर भी उसमें है, मतलब p को इवन होना चाहिए। ओके एवरीवन, ओके एवरीवन। यस सर। सब लोग यस लिखो yes पहले। sir yes यस है ना सबका? हाँ। तो अगर p इवन नंबर है तो p को मैंने कहा लेट यू आर 2a। अगर तुम इवन नंबर हो तो तुम्हारा नाम चलो 2a है। अगर p मेरा इवन है तो q को तो ऑड होना ही चाहिए, नहीं तो p और q दोनों इवन होगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जो कि सही नहीं है, राइट। तो p को जैसे मैंने 2a ले लिया तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, राइट। तो अब q स्क्वायर जो आ रहा है a स्क्वायर इंटू 2 आ रहा है, मतलब q क्या आ गया? q मस्ट बी इवन ऑल्सो। बट ये तो गलत बात हो जाएगी। अगर p और q दोनों इवन होते तो दोनों तो p बाई q का फॉर्म ही नहीं होता, उसको तो कैंसिल होके को प्राइम नंबर होना चाहिए था, HCF 1 होना चाहिए। और अगर दोनों इवन नंबर है तो HCF 1 नहीं होगा, राइट। मतलब Q इवन नहीं है बट मेरा Q इवन आ रहा है, P इवन के कारण मतलब ये मेरा ट्रू नहीं है। ये सर आपने A का मेरे को नहीं समझा है, A का आपने क्या किया A के साथ? मैंने P इक्वल टू 2A रख दिया, तो 2A जैसे P की जगह पर रखूंगा तो स्क्वायर होने पर वो 4A स्क्वायर होगा, 2 से कैंसिल किया तो ये 2A स्क्वायर हो गया। तो Q स्क्वायर की वैल्यू 2A इंटू A स्क्वायर हो गया। 2 का मतलब हो गया, मतलब Q 2 का मल्टीपल हो गया। Q को 2 का मल्टीपल होने का मतलब हो गया कि Q जो होगा वो इवन नंबर होगा। हाँ, फिर तो कोप्राइम नहीं होंगे। तो कोप्राइम नहीं होंगे, लेकिन हमने तो शुरुआत ही किया था कोप्राइम है दोनों। मतलब ये जो हमने लिखा है वो गलत है, मतलब ये भी गलत है तो ये भी गलत है तो ये भी गलत है तो ये भी गलत है। मतलब √2 रैशनल नंबर नहीं है। और अगर √2 रैशनल नहीं है तो क्या होगा? इरैशनल होगा। जितने ICSE वाले हैं वो यस लिखेंगे तब मेरे को अच्छा लगेगा भाई, जितने भी ICSE वाले हैं। सेम मेथड। राहिल वेरी गुड बेटा। और अच्छा सर एक बेटा वेट, तनिष वेरी गुड, दुर्गेश वेरी गुड बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, एवरीवन वेरी गुड। ठीक है ठीक है। हाँ बोलो। मैंने भी यही मेथड से किया है। पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर हम लोग 2 को √2 को डिवाइड करें 2 से, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा ना। कैसे पता? तब तो वो तो इरैशनल शुरुआत। नंबर्स का हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही आता है। तेरे को कैसे पता वो इरैशनल है? यही तो प्रूफ करना है। हाँ, तो हम लोग डिवाइड करें तो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमको ये मेथड स्कूल में सिखाया था 9th क्लास में। अब बदनाम मत कर यार स्कूल को, बट ये गलत अजीब बात है ना, मैंने हमको पहले एज्यूम करना पड़ता है वो पहले इरैशनल है वो करने के लिए। पहले तू ये स्टेटमेंट निकाल, मेरे को ये स्कूल में सिखाया था, फिर मैं आगे सुनूंगा। फालतू स्कूल को बदनाम कर देगा। ठीक है ठीक है। कि सर एक मेथड ऐसा मैंने सोचा, ये करके बता दो। हाँ, तो उसमें तो पहले अज्यूम करना पड़ेगा √2 रैशनल है, तभी कर सकते हैं ना।
गलत बात हुई ना, तो आपने जो प्रूफ करना है वही आपने अज्यूम कर लिया। हाँ वही मेरा डाउट था कि नहीं कर सकते। गलत हुई बात। देखो एक बार फिर से पूरा स्टेटमेंट को देखो ना, वो तो बड़ा सिंपल सा है। कहानी इतनी सी है कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन है, राइट, टू रैशनल है या इरैशनल, तो इरैशनलिटी के बारे में हमारे पास बहुत नॉलेज कम है। मतलब ये समझ जाओ कि पैरेलल यूनिवर्स एक है और उस पैरेलल यूनिवर्स के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, इस यूनिवर्स के बारे में मेरे को मालूम है। तो मैं अगर किसी को ये प्रूव करना है कि ये आदमी, यहाँ जो भी आदमी था एक, वो आदमी ये यूनिवर्स का नहीं है, उस यूनिवर्स का है, मतलब ये अगर मुझे प्रूव करना है कि वो पैरेलल यूनिवर्स में रहता है, राइट, तो मैं यहाँ पर ये प्रूव करने जा रहा हूँ भैया ये आदमी यहाँ नहीं रहता, नहीं है। अगर यहाँ नहीं है और यही दो ही यूनिवर्स अगर है, एक ये यूनिवर्स और एक पैरेलल यूनिवर्स, तो 100% यहाँ नहीं है तो कहाँ होगा, पैरेलल वाले में होगा। हाँ। राइट, तो हाँ। ये एक तरीका होता है किसी भी चीज को प्रूव करने का। मैथमेटिक्स में जो इतना ब्लैक होल्स देखते हो और इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करके देखा है आप लोगों ने, उसमें से अधिकतर 70% जो एक्सपेरिमेंट करके प्रूविंग होती है इसी पर बेस होती है। शुरुआत इतनी सी बात से ही होती है कि लेट दिस इज ट्रू, और उसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं ये ट्रू नहीं है। तो अगर ये ट्रू नहीं है तो वो भी ट्रू नहीं होगा, राइट, ध्यान से देखना। एक मैक्सिमम चीजें जो प्रूफ हुई है ना, वो ग्रेविटेशनल वेव है वो ले लो या एवरीथिंग, मतलब कभी और बात करूंगा उस पर, राइट। तो हमने क्या एज्यूम किया कि जो मेरे पास √2 गिवन है वो p/q के फॉर्म में है। अगर p/q के फॉर्म में है तो रैशनल नंबर के लिए याद होगा, मैंने एक बार डेफिनेशन में आप लोग को बोला भी था कि रैशनल नंबर तो सब होते हैं, लेकिन कंप्लीट रैशनल नंबर होने के लिए उसे दोनों को कैंसिल करके लिखना हमें चाहिए, राइट, दोनों को लिखना चाहिए कैंसिल करने के बाद। अगर कैंसिल करने के बाद लिख रहा हूं तो p और q जो होंगे वो को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब हुआ इसका HCF 1 होगा। ये क्लियर है सबको? रुद्रा, हाँ क्लियर है ये, राइट। तो HCF मैंने कहा कि 1 है, ठीक। तो हमने कहा अगर ऐसा है तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2q स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू अगर 2q स्क्वायर आ गई, इसका ये मतलब हो गया कि ये 2 का मल्टीपल है। अगर ये 2 का मल्टीपल है मतलब p जो है वो एक इवन नंबर है। इज इट ओके रुद्रा? इज इट ओके एवरीवन? राइट, ठीक है। तो p अगर इवन नंबर है, हाँ, आपने √2 को क्या किया? √2 को क्या किया मतलब बेटा? आपने क्या p और p √2/p q लेके p कर दिया क्या? नहीं समझा, फिर से बोलिए प्लीज। आपने p की वैल्यू जो ऊपर इक्वेशन में आपने √2q लेके p को वैल्यू निकाली क्या? स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। नहीं ऊपर वाले है HCF के पहले नहीं, दोनों तरफ सिर्फ स्क्वायर किया, उसके बाद ये वाले स्टेप के बाद ये जब लाया ना तो q स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, मुझे 2 कैसे आ गया सर? 2 तो ये √2 का स्क्वायर तो 2 होता है ना, हाँ, वहां से 2 आया वो, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2q स्क्वायर हो गया। आई गेस यू आर नॉट गेटिंग। पूछो एक बार फिर से, पूछो एक बार फिर से। यहाँ पर q दो 2 कैसे समझ नहीं आ रहे। कौन सा बेटा? ये वाला 2? हाँ, नीचे 2 कैसे आ गया? ये वाला 2? हाँ, ये वाले, ये तो 2 है ना ये, और q स्क्वायर को इधर ले गया तो 2 × q स्क्वायर क्या होगा? 2q स्क्वायर। हाँ, वही लिखा है। p के नीचे 2 कैसे आ गया? p के नीचे q कैसे? p स्क्वायर के नीचे p के नीचे 2 नहीं है, अभी समझोगे, वो नेक्स्ट स्टेप है वो ना। यहाँ तक का स्टेप हो गया। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या बोला कि p अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2a, 2n के फॉर्म में होना चाहिए ना। तो p को हमने बोला लेट यू आर 2a, तो p के वैल्यू मैंने 2a बैठा डाली इसमें। तो 2a जैसे बैठाऊंगा तो ये क्या आएगा? 2a का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, और यहाँ पर 2q स्क्वायर था, तो यहाँ से 2 को कैंसिल किया इस 4 से, तो क्या बचेगा? 2, वो वाला ये 2 है, ठीक है। तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2a स्क्वायर।
हाँ राइट। अगर क्यू स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर आ गई तो क्यू स्क्वायर में एक 2 का फैक्टर आ रहा है। हाँ सर। तो क्यू स्क्वायर में 2 का फैक्टर आने का मतलब क्या हुआ, क्यू जो भी है क्यू का उसमें 2 का मल्टीपल है वो। हाँ सर। अगर वो 2 का मल्टीपल है मतलब क्यू भी इवन नंबर हो गया। हाँ सर। अगर वो इवन नंबर हो गया तो हमारा जो हमारा स्टेटमेंट था वो गलत हो जाएगा, क्योंकि p भी Yes, इवन sir. नंबर है q भी इवन नंबर होगा तो को प्राइम नहीं हो सकते। मतलब ये हमारा गलत स्टेटमेंट आया है, ये भी गलत रहा होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये भी गलत रहा होगा। हाँ, मतलब प्रूफ नहीं हुआ p, था। हाँ तो √2 जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। अगर √2 p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है तो कहाँ है? हमने बोला कि भैया वो रैशनल नहीं है, वो इरैशनल है। क्लियर एवरीवन? सभी को ठीक है, समझ आई बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पूछो यार, आप लोग पूछो, नो प्रॉब्लम, एकदम बिना हेजिटेशन के पूछो ना। दैट्स वेरी गुड। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अपना जितना दिल का चीज है ना, ये सब छोटी छोटी चीजें बट बहुत इफेक्टिव होता है। दैट यू मस्ट बी विद दैट। और एक बार ये चीजें क्लियर होने का सबसे आसान रहता है, काम बन जाता है। मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में 3rd and 4th बेटा प्लीज भेज दोगे मेरे को, मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। प्लीज सेंड मी। यस सर। है ना, अपने ना डाउट्स वगैरह भी मेरे को सेंड कर देना। होता है कभी कभी क्या है कि बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे स्टूडेंट है ना, कभी ऊपर नीचे हो जाता है ना, कि कभी मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक छोटा सा मेरे को रिमाइंड करवा देना, कुछ ना कुछ मैं हिंट देता जाऊंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो भी आपके मेरे ख्याल से नेक्स्ट एग्जाम जब होने वाला है उसके पहले में ये पूरी चीजें रिवाइज कर लेना जहां तक अभी तक किया है। और जितने भी डाउट्स हैं, जहां भी लग रहा है कि कंफ्यूजन है, जितना जल्दी हम लोग खत्म कर पाए उतना आसान रहेगा आपके लिए ना। टाइम टेबल का भी एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ, क्यों गड़बड़ हो रहा है ये लास्ट 2 वीक से। अगले बार के लिए विल बी देयर ना, भेज दिए। यस सर, भेज दिया। कौन कौन सा था नंबर बेटा? 3 and 4। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट, ये वाला ना, ट्रू स्टेटमेंट ऑन सर्ट्स क्या क्या है? a root b प्लस माइनस c root b इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है? a, कुछ साइन इसका मिसप्रिंट हो गया है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये। सेकंड है a, ये किसका डाउट है? नाम बताना अपना। सर राहिल मोदी। राहिल मोदी। राहिल तुम्हारा बोर्ड कौन सा था बेटा? ICSE। अच्छा, ये वाला चैप्टर कभी पढ़ाया नहीं था तुम लोगों को 9th में? ये ना गड़बड़ किया है कहीं पर, तुम लोगों को मिस करवा दिया होगा इस कारण से। हाँ, ये ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा, बहुत लोगों को इससे तेरे हेल्प हो जाएगा। कई लोग ये नहीं पूछ पाते हैं जिसके कारण बार बार होता है। ये एक क्वेश्चन सही माने में अपने आप पूरी थ्योरी है तुम्हारे सर्ट्स की, रैशनल इरैशनल की, ठीक है। आओ देखते हैं, टेक योर टाइम, सब लोग सोचो फिर हम लोग बात करते हैं ना।
वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर आ गया है। डिस्कस करेंगे बेटा ना। सर हाँ बोलो ना। सर फर्स्ट ऑप्शन में स्क्वायर का मतलब क्या है सर? कुछ नहीं, वो मिसप्रिंट होगा शायद, मेरे ख्याल से इनटू होगा या कुछ होगा, शायद प्लस माइनस लिखना चाहा हो ऐसा। हाँ? क्या लिख दूं बोलो, प्लस माइनस रहने दूं जैसा प्लस माइनस है? या प्लस माइनस कर दूं? प्लस यहाँ पे माइनस शायद से फर्स्ट वाला आंसर होगा ना। अब देखते हैं, एक एक फर्स्ट वाला राइट होगा। राइट होगा, देखते हैं। अभी बहुत लोगों का आंसर आया है, सबसे पूछते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला राहिल। राहिल प्लीज। हाँ क्या बोलना चाह रहे बेटा? तो शायद से फर्स्ट वाला राइट होगा ना। फर्स्ट होगा एंड मोर देन वन है इसमें, एक नहीं है। अच्छा प्लीज प्लीज 3 मिनट का आप सबके पास टाइम है, आप 3 मिनट का टाइम आप लोग ले लें। अगर कंफ्यूजन होता है इन चीजों में ना, एक हिंट दे रहा हूं, आप क्या करो, धीरे से कोई नंबर वगैरह 2 3 4 5 मतलब ऐसा इरेशनल टाइप का नंबर लेके देख लो, शायद आपको काम करना आसान रहे और दिखना भी आसान रहे। तो यू हैव 3 मिनट फॉर दिस ना, टेक योर टाइम, आराम से कंफर्मिटी के साथ आंसर हमें करना है, कौन सा सही कौन सा गलत, राइट? यू हैव 3 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस एंड करेक्शन दोनों आ रहे हैं, ये अच्छा लगता है ना। वेरी गुड। इस शिखर तू ना, हाँ, किसी को भी बदनाम कर देगा। आंसर लिख के बाजू में लिख दिया भाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कोई बदनाम कर देगा मैं बोल रहा तू किसी को भी बदनाम कर देगा। ABC करेक्ट बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर गलत हुआ तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का गलती, मेरा गलती नहीं है चले स्टार्ट करें। मुझे लगा किस बेसिस पे किया वो आपको लगेगा। है? क्या लगेगा? किस बेसिस पे मैंने फाइंड किया आंसर आप पूछे तो मैं लिख ही देता हूँ। नहीं बेटा अभी ठीक है, थोड़े बहुत जो करेक्शन होंगे अभी कर लेंगे हम लोग ना। चलो स्टार्ट करें। राहिल आप कुछ बोल रहे थे? यस बेटा। राहिल आर यू देयर? यस यस सर। हाँ क्या बोल रहे थे, क्या सही होगा, क्या लग रहा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट, वाई फर्स्ट इज करेक्ट? ओनली फर्स्ट या फर्स्ट के साथ कोई और भी लग रहा है? सर फोर्थ, शायद से फोर्थ और फर्स्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट में तो ऑब्वियस सी बात है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है कि रूट बी दोनों से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आने के बाद जैसा नंबर था वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो आपने फर्स्ट कहा, बिल्कुल सही बात है ना। फोर्थ का मतलब एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। √2 प्लस √3, क्या इसे मैं √5 लिख सकता हूँ?
नहीं सर, नहीं सर। मतलब कि बिल्कुल ये गलत चीज होगी, मतलब फोर्थ वाला तो मेरा गलत है, ये भी रह गया। ठीक है ना, मतलब दोनों के अंडर रूट इस तरह से वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद प्रदनीश किसका था? प्रियांक। यस सर। हाँ बेटा बताओ, सेकंड एंड थर्ड के बारे में बताएं कुछ। फर्स्ट एंड थर्ड होगा शायद मेरे ख्याल से। अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड के लिए हमने कहा कि जो हमारे पास, क्योंकि गिवन है हमारे पास x एंड y, राइट, दोनों के पावर सेम है, तो मैं लिख सकता हूं x by y to the power 1/n। क्योंकि दोनों का पावर सेम है इसलिए मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई दोनों को आराम से कर सकता हूं, इसलिए थर्ड सही है। एंड सेम लॉजिक से मैं बोल सकता हूं कि सेकंड गलत है, क्योंकि दोनों का पावर सेम नहीं है। राइट, वेरी गुड। फर्स्ट एंड थर्ड राइट, एंड सेकंड फोर्थ नो। किसी को कंफ्यूजन है, डिस्कस करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। क्या? हेलो सर, हाँ, आपने बोला है कि √2 + √3 5 नहीं होता। √5। हाँ, आपने बोला ना √2 + √3 5 नहीं होता। तो हम लोग थर्ड में तो कैसे तो थर्ड में ऐसा कुछ आएगा ना, एंड दोनों में कॉमन आएगा, फिर √x डिवाइड बाय, हाँ, डिवाइड बाय √5 कॉमन नहीं आएगा दोनों का ना। √2 मान लेते 3 है, √5 का पावर 1/3 है, तो ये 2/5 का पावर 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ। ये है थर्ड वाला। हाँ सर। ओके, राइट। एक और कोई क्वेश्चन था, और कौन सा था इसके साथ में? एक मिनट, कहाँ चला गया? कौन कौन सा था बेटा? थर्ड एंड फोर्थ ना? यस सर। ना, अब फोर्थ भी करीब करीब सेम है, अब वो नंबर्स पे आ गए, ये थोड़ा और आसान रहेगा। Which will be rationalizing factor to one another। एक दूसरे का कौन सा रैशनलाइजिंग फैक्टर है? रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब समझे ना, किसको मैं सर मल्टीप्लाई मुझे इसमें करूंगा? खाली सी वाला और सी वाला नहीं समझा। अभी करते हैं बेटा। एंड ठीक है, डी और सी तो करीब करीब सेम ही है, बी और डी तो सेम है, राइट। ये केवल हम लोगों को बात इस पे करना है ना, और किसी पे हम लोग बात ना करें, ठीक है ना? यही ना बेटा, थर्ड वाला ओनली। थर्ड वाला नहीं समझा, बाकी तो ऊपर वाला तो आता। वेरी गुड, बहुत सही क्वेश्चन तुमने पकड़ा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसके लिए थोड़ा हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से समझाना या समझना मुश्किल होगा, राइट। इसके लिए थोड़ा मेहनत की जरूरत है। क्या मेहनत है ये देखें। एक फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तुरंत किया था, a³ प्लस किया था, माइनस रखता हूं ना, -bq इज इक्वल टू a - b इंटू a²
माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 जो होगा वो होगा a माइनस b, a टू द पावर 4 a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4। a टू द पावर 7 माइनस b टू द पावर 7 होगा a माइनस b, a to the power 6 minus a to the power 5b plus a to the power 4b square minus a cube b cube plus a square b to the power 4 minus a b to the power 5 plus b to the power 6, right? a to the power 9 b to the power 9, right? जल्दी से कोशिश करो तो पैटर्न देख के a to the power 9 minus b to the power 9 लिखने की सब लोग कोशिश करो जल्दी से। आराम से लिखो 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 लिखो, सब में प्लस कर देना, राइट? अब ये पैटर्न दिख गया, और अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस और फिर इसमें प्लस माइनस, वो भी दिखाता हूं। पहले माइनस के लिए a माइनस बी का फैक्टर निकाल दिया, फिर इसको रोटेट कर दिया। पहले तीनों को नोट करो प्यार से, थर्ड वाले को कोशिश। आ गया तो बोलना है क्या? डन। a to the power 9 minus b to the power 9 कोशिश करो, how it's coming। ओके, मैं लिखूं क्या? हो गया सर। यस सर। हो गया, एक बार लिख देता हूँ। a माइनस बी ये रहा, 8 से शुरू होगा, ये 7 गया, b गया, ये 6 गया, b स्क्वायर गया, ये 5 गया, ये b क्यूब गया, ये 4 गया, b टू द पावर 4 गया, a क्यूब रहा, b टू द पावर 5 गया, ऐसे करते करते आखिर में b टू द पावर 8 तक। ठीक है? हाँ ठीक सर। है, मतलब n अगर ऑड है तब के लिए मैं ऐसा फॉर्मूला लिख सकता हूँ, राइट? तो अगर n ऑड है तो we can write for n for any, right? I can write a minus b, a to the power n, a to the power n minus 1 plus a to the power n minus 2b plus a to the power n minus 3b square करते करते b to the power n minus 1, ये पूरा जाएगा। Is it okay? Yes, okay, right? देखो अब जादू आएगा। अब a को रिप्लेस करता हूँ a to the power, a को रिप्लेस कर रहा हूँ a to the power 1 by n से, b को रिप्लेस कर रहा हूँ b to the power 1 by n से, राइट? ये आ गया a minus b is equals to a to the power 1 by n minus b to the power 1 by n and a to the power n minus 1 by n plus a to the power n minus 2 by n b to the power 1 by n करते 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 b to the power n minus 1 by n, ये कुछ ऐसा। यहाँ तक ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं वेट करूंगा। यू हैव टू डू इट, समझ में आ जाए देन वी कैन गो फर्दर।
सर हाँ आपने इसलिए में क्या किया, मैं ऑफलाइन चला गया था। ऐसे ही वैसे इधर उधर की बातें चल रही थी, चल रहा था इधर की और कितने दिन का कॉन्ट्राइन होना है, कब तक रहेगा लॉकडाउन वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ खास नहीं। आपने वो a पावर 9 माइनस b पावर 9 की आइडेंटिटी है कुछ नहीं बोला? उसके बाद कुछ भी, केवल ये फॉर्मूला लिख दिया बस। अच्छा ठीक है। एन ऑड के लिए, और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एन इज ऑड, राइट, एन ऑड के लिए ये फॉर्मूला लिखा। और फिर ए जैसा उस समय क्वेश्चन तुमने पूछा था ना, तो हमने किया था ए को रिप्लेस किया a टू द पावर 1/n से, और b को रिप्लेस किया है b टू द पावर 1/n से। ये पूरा आया मेरे पास ऐसा रिजल्ट। ठीक है सर की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्या मजाक कर रहे हो, आवाज आ रही होगी यार। थोड़ी भी नहीं आ रही है। कैसे पता चला मैंने कुछ बोला? राइट पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछे हैं, पॉलिनोमियल को भी ढंग से आप लोग एक बार देख लोगे। याद है ना पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस? When divided by x minus 1 leaves the remainder this, divided by this then leave the remainder this, then what is the remainder then when divided by both the numbers। हम लोग ने उसको भी देख के रखा हुआ है। ठीक है सर आपने ब्रेन वर्क का 9th क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व किया है सर? ब्रेन वर्क करना पड़ेगा बेटा एक बार। क्या आपने ब्रेन वर्क्स का 9th क्वेश्चन बोल देंगे प्लीज? एक मिनट। इफ ब्रेन वर्क्स का 9th क्वेश्चन बोल देंगे प्लीज? इफ वन ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट है 1 माइनस a अपॉन b होल -2 माइनस इनवर्स स्क्वायर कुछ। सर ब्रैकेट में वो और वो -2 सिर्फ a b में है सर। -2 केवल b में है। हाँ सिर्फ a अपॉन b में है, a अपॉन b। हाँ a अपॉन b में ही लगा हुआ है बेटा, a अपॉन b टू द पावर -2 ना। इनको होल मतलब 1 माइनस a अपॉन b होल्स -2 और होल ब्रैकेट में और a स्क्वायर होल इनटू a स्क्वायर। हाँ अपॉन रूट a माइनस रूट b स्क्वायर होल स्क्वायर। अपॉन रूट a माइनस रूट b होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ab That's it? इक्वल टू 1। देख लेंगे वो तो क्या होगा ना। इसे ध्यान से लो, a by b टू द पावर -1 का मतलब हुआ b by a हुआ है सर। हैं? सर पूरा नहीं हुआ है सर, पूरा नहीं हुआ है सर। अच्छा इक्वल टू 1। एंड a प्लस b इज इक्वल टू 5, फाइंड a एंड b। ठीक है बेटा अभी हो जाएगा ना। तो a by b टू द पावर -2 को लिख सकता हूँ b by a का स्क्वायर। ठीक है ओके। 1 माइनस इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, राइट। एलसीएम लिया तो लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, राइट। तो इसकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये बन गया मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर पे नीचे क्या बना देखो तो, इसको ओपन करता हूँ। a माइनस b का होल रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b माइनस 2 रूट ab। वेरी गुड। और प्लस 2 रूट ab दोनों कैंसिल हो गए, इजिकल टू 1। इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया a माइनस b की वैल्यू 1 और a प्लस b मेरी गिवन थी 5, राइट। दोनों को ऐड किया a की 3 वैल्यू और 2 b की वैल्यू 2 आ गई। हाँ सर आया। वेरी गुड बेटा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है चलो बी सेफ, टेक केयर ना। आगे हम लोग फिर और
नेक्स्ट वाले क्लास में मैं देखता हूँ पॉलिनोमियल का। हाँ सर एक मिनट रुक सकते हैं सर, कॉपी कर रहा हूँ। हाँ सर आप होने के बाद एक बार पिछला स्क्रीन आएंगे। हाँ मेरा 5 या 6 बार मेरा डेटा ऑफ हो गया तो मैं ऑफलाइन चला गया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अभी रिकॉर्डिंग भी देख लेना। हाँ वही मेरा लास्ट हाफ एन आवर देखना पड़ेगा। सर आप हमें मेंटरशिप में ऐड करने वाले हो सर? हाँ बेटा, अपना नाम और ये सब भेज देना डिटेल, मैं मेंटरशिप में ऐड कर दूंगा। पर्सनल आईडी में मेरे को भेज देना। सर मुझे कोई डाउट है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकती हूँ ना? एकदम 100%। हाँ ऑलवेज। हाँ सर कॉपी कर लिया। ओके ओके सर एक मिनट।